بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق ہے جوہری انشقاق۔ قرآن مجید کی سورہ انشقاق ہے اور اس کا مطلب شق ہونا، ٹوٹنا، اجزاء میں تقسیم ہونا۔ دوسرا لفظ ہے جوہری پارگی، پارا پارا ہونا، ٹوٹنا، اجزاء میں تقسیم ہونا، جیسے قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تیسرا لفظ استعمال ہوتا ہے جوہری ٹوٹ، آسان ہے۔ اور چوتھا جوہری پھٹاؤ، انگریزی میں نیوکلیئر فیشن کہتے ہیں۔ تعریف پڑھتے ہیں جوہری ٹوٹ کی، نیوکلیئر فیشن۔ جب بھاری ایٹموں پر نیوٹرانوں کی بمباری کی جاتی ہے، بھاری ایٹم سے مراد جس کا مرکزہ بھاری ہے، جس میں پروٹانوں اور نیوٹرانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ جب بھاری ایٹموں پر نیوٹرانوں کی بمباری کی جاتی ہے تو ایٹموں کے مرکزے تقریباً برابر ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں، مرکزے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس عمل کے دوران 2 یا 3 نیوٹران نکلتے ہیں اور بہت سی توانائی خارج ہوتی ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں جوہری ٹوٹ، یعنی جوہر کا مرکزے کا ٹوٹ جانا۔ جوہری ٹوٹ کی 2 قسمیں ہیں۔ جوہری ٹوٹ نیوکلیئر فیشن، پہلی قسم طبی یا از خود ٹوٹ نام سے ظاہر ہے کہ خود بخود ٹوٹ جانا، سپونٹینیس فیشن کہتے ہیں انگریزی میں۔ اور دوسری قسم ہے تحریک انگیز ٹوٹ، یعنی تحریک ملنے سے ٹوٹنا۔ کسی ایٹم کو مرکزے کو باہر سے تحریک ملتی ہے تو ٹوٹتا ہے، انڈیوسڈ فیشن انگریزی میں کہتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے طبی یا از خود ٹوٹ، سپونٹینیس فیشن۔ اس کی تعریف ہے کچھ تابکار عناصر کے مرکزے طبعاً یا خودکار طریقے سے ٹوٹ کر 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں۔ تابکار عناصر، ایسے عناصر جن سے شعاعیں، روشنی خارج ہوتی ہے۔ تاب کا مطلب روشنی، تابکار روشنی یا شعاع خارج کرنے والے۔ تو کچھ تابکار عناصر کے مرکزے طبعاً یا خودکار طریقے سے ٹوٹ کر 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں اور 7 نیوٹرانوں اور توانائی کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ طبعی طریقے سے خود بخود ٹوٹتے ہیں۔ ٹوٹ کا عمل دیکھیے، یورینیم 235 کے مرکزے کی طرف ایک نیوٹران تیز رفتاری سے آ رہا ہے، مرکزہ نیوٹران کو گرفت میں لے لیتا ہے۔ یورینیم 235 234 میں تقسیم ہو کر لمبوترا سا ہو جاتا ہے اور پھر ٹوٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، بیریم اور کرپٹان، ساتھ 3 نیوٹران خارج ہوتے ہیں۔ یہ ٹوٹ کا عمل ہے۔ جوہری ٹوٹ کی مثالیں، پہلی مثال ہے یورینیم 235 کی، بائیں طرف لکھا ہوا ہے 92 اور 235، ایک نیوٹران کی بمباری ہوتی ہے اس کے اوپر N01 اور یہ تقسیم ہو جاتا ہے 2 ٹکڑوں میں، بیریم اور کرپٹان۔ بیریم 56 141، 56 پروٹان، 141 پروٹانوں اور نیوٹرانوں کا مجموعہ، اور اسی طرح کرپٹان 36 92 میں 3 نیوٹران اس میں خارج ہوتے ہیں۔ یہ عمل اس طرح سے بھی ہوتا ہے، وقوع پذیر ہو سکتا ہے نیچے والی مساوات سے، جس طرح ظاہر ہے کہ یورینیم 235 میں 1 الیکٹران کی بمباری کی اور یہ سیزیم 55 138 میں اور روبیڈیم 37 96 میں تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن اس عمل میں 2 نیوٹران اوسطاً خارج ہوتے ہیں، اوپر والے میں 3 اوسطاً اور نیچے والے میں 2 خارج ہوتے ہیں۔ دونوں طرح سے مرکزہ یورینیم کا ٹوٹ سکتا ہے۔ جوہری ٹوٹ اور توانائی، جوہری ٹوٹ سے حاصل ہونے والے دونوں ٹکڑوں اور نیوٹران تیز رفتاری سے حرکت کرتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا کہ مرکزہ ٹوٹتا ہے، 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے، 7 نیوٹران نکلتے ہیں۔ یہ دونوں تیز رفتاری سے حرکت کرتے ہیں۔ ان ٹکڑوں اور نیوٹرانوں کی توانائی ابتدائی طور پر بمباری کرنے والے نیوٹرانوں اور مرکزے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ٹوٹنے کے بعد جو 2 ٹکڑے تیز رفتاری سے حرکت کرتے ہیں اور نیوٹران تیز رفتاری سے حرکت کرتے ہیں، ان کی توانائی جو ابتدائی طور پر جو نیوٹران بمباری کرتا ہے اس کی اور جو مرکزہ ہے اس کے اندر موجود توانائی اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ ٹوٹنے سے پہلے جو نیوٹران آ رہا ہے تیز رفتاری سے، اس کے اندر توانائی ہے، اور جو مرکزہ ہے نیوکلس اس کے اندر توانائی ہے۔ اس کو الگ کر لیجئے، اور ٹوٹنے کے بعد جو 2 ٹکڑے تیز رفتاری سے حرکت کرتے ہیں اور ساتھ 3 یا 2 نیوٹران تیز رفتاری سے حرکت کرتے ہیں، ان کی توانائی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی ٹوٹنے کے بعد جو اجزاء کی توانائی ہے وہ ٹوٹنے سے پہلے اجزاء کی توانائی سے
के ही ज़्यादा होती है। इसी बात को हम आगे मिसालों के ज़रिए साबित करेंगे। नीचे एक मसावात लिखी हुई है। टूट से पहले ई के यानी तवानाई मरकज़े की और तेज़ रफ्तारी से आने वाला न्यूट्रॉन, इनकी तवानाई इज़ वेरी वेरी स्मॉल, बहुत बहुत कम होती है टूट के बाद ई के, यानी टूटने के बाद जो अज्जा हैं बेरियम, क्रिप्टॉन, सीजियम, रुबिडियम वगैरह और साथ न्यूट्रॉन, इनकी तवानाई से पहले की तवानाई बहुत कम होती है। टूटने से पहले की तवानाई टूटने के बाद की तवानाई अज्जा की से बहुत कम होती है। मसावात के जरिए इजहार यानी टूट से पहले और टूट के बाद अज्जा में कितनी तवानाई है। आप देखिए ऊपर वाली मसावात में कि यूरेनियम 235 पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी हुई और ये सीजियम और रुबिडियम में तकसीम हो गया 2 टुकड़ों में और साथ औसतन 2 न्यूट्रॉन निकले। अब इनमें हर जो उनसर है उसकी अलग अलग उसका तोल मालूम करते हैं। यूरेनियम 235 इसका तोल है 3.9014 ज़रब 10 की ताकत -25 किलोग्राम। सीजियम का तोल है 55 का 2.2895 ज़रब 10 की ताकत -25 किलोग्राम। रुबिडियम 3796 का तोल है 1.5925 ज़रब 10 की ताकत -25 किलोग्राम और एक न्यूट्रॉन का तोल है 1.6750 ज़रब 10 की ताकत -27 किलोग्राम। इसकी मदद से हम बाएं तरफ वाली यानी टूट से पहले की और दाएं तरफ जो अज्जा हैं टूट के बाद के, उनमें तवानाई का मवाजना करेंगे और देखेंगे कि जो बाद में तवानाई है टूट के बाद वो कितनी ज़्यादा है टूट से पहले की तवानाई से। दोनों अतराफ का तोल मालूम करते हैं, टूट से पहले और टूट के बाद का तोल। मसावात के बाएं जानब का तोल यानी टूट से पहले, उसमें यूरेनियम था और एक न्यूट्रॉन था जो बमबारी करने के लिए आया था। जो यूरेनियम 235 है उसका तोल है बाएं तरफ 3.9014 ज़रब 10 की ताकत -25 किलोग्राम और एक न्यूट्रॉन था 1.6750 ज़रब 10 की ताकत -27 किलोग्राम। ये बाएं तरफ का तोल था और दाएं तरफ क्या था, और ये सिर्फ बाएं तरफ का तोल हमने आगे जमा कर दिया इनको, तो ये आया 3.9181 ज़रब 10 की ताकत -25 किलोग्राम। ये सिर्फ बाएं तरफ का तोल है, एक यूरेनियम और एक न्यूट्रॉन का। मसावात के दाएं जानब का तोल दाएं तरफ का देखते हैं, सीजियम और रुबिडियम का और साथ 2 न्यूट्रॉनों का। देखिए सीजियम का 2.2895 ज़रब 10 की ताकत -25 किलोग्राम जमा रुबिडियम का 1.5925 ज़रब 10 की ताकत -25 किलोग्राम जमा 2 न्यूट्रॉन औसतन इसमें निकलते थे 2 ज़रब 1.750 ज़रब 10 की ताकत -27 किलोग्राम। इन तीनों को जमा किया तो जवाब आया 3.9155 ज़रब 10 की ताकत -25 किलोग्राम। आप ज़रा गौर कीजिएगा, जो ऊपर टूट से पहले का तोल था 3.91815 ज़रब 10 की ताकत -25, ये ज़्यादा है टूट के बाद का तोल। ज़रा गौर से देखिएगा ये फ़र्क क्यों आ गया। पहले तोल ज़्यादा था एक न्यूट्रॉन और यूरेनियम का, और टूटने के बाद का तोल कम हो गया। ये तोल कहाँ गया, इसकी खोज लगानी है। यहां पर लिखा है फर्क तोल। टूट से पहले का तोल अलग अलग करके यह है 3.91815 ज़रब 10 की ताकत -25 किलोग्राम, और टूट के बाद कुल तोल कितना आया 3.91550 ज़रब 10 की ताकत -25 किलोग्राम। गौर करने से आपको पता चलेगा, ऊपर वाली रकम देखिएगा कि कितना तोल है और नीचे वाली रकम देखिएगा कि कितना तोल है। टूट से पहले का तोल इज ग्रेटर देन टूट के बाद का तोल। टूट के पहले का तोल ज्यादा है टूट के बाद के तोल का। रकम को गौर से पढ़ लीजिए 3.91815 और टूट के बाद है 3.91550 91550 91815। ये ज़्यादा है टूट से पहले का और टूट के बाद का कम है। ये
तोल कहाँ गया? ये जो फर्क है तोल का, ये हमने खोज लगानी है, ये तखमीना लगाना है कि ये तोल में कमी क्यों वाक़ हुई और ये कमी कहाँ गई। फर्क तोल, टूट से पहले का तोल और टूट के बाद का तोल, इसमें फर्क कितना आया है। ये m बराबर है, टूट से पहले का था 3.91815 × 10 की ताकत -25 किलोग्राम और टूट के बाद तोल था 3.91550 × 10 की ताकत -25 किलोग्राम। तो इसमें से मनफी कर दिया, टूट से पहले के तोल में से टूट के बाद वाला तोल मनफी कर दिया, तो ये आया 2.65 × 10 की ताकत -28 किलोग्राम। ये फर्क क्यों आया? टूटने से पहले जर्रात का तोल ज्यादा था और टूटने के बाद कम है। तो ये जो फर्क आया है कमियत का, तोल का, ये फर्क 2.65 × 10 की ताकत -28 किलोग्राम है। और ये फर्क जो है तोल में कमी तवानाई के इखराज का बायस बनेगी। ये जो फर्क है ये तवानाई में तब्दील हो जाएगा, बहुत ज्यादा तवानाई के इखराज का बायस बनेगा। तवानाई का इखराज, जरा इस मसावत की तरफ देखिए। E बराबर mc², सामने एक मुसल्लस में भी एक कोने में E, एक में m और एक में c² लिखा हुआ है। और यहाँ E से क्या मुराद है? खारिज शुदा तवानाई। इस टूट के अमल में तवानाई कितनी खारिज होती है। और m है फर्क तोल, मास डिफरेंस किलोग्राम में, जो टूटने से पहले और टूटने के बाद जर्रात के तोल में फर्क आया है। और C है खला में रोशनी की रफ्तार, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये 3 × 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकंड है। यानी इस रफ्तार के साथ जो फर्क है तोल, जो तोल है, जो जर्रात से बनी कोई चीज है वो हरकत करती है तो वो तवानाई में तब्दील हो जाती है। यही तो आइंस्टाइन की मसावत थी कि जो तोल है, जो मिकदार मादा है, वो तवानाई में तब्दील हो जाता है और तवानाई भी मिकदार मादा में तब्दील हो जाती है। तो ये जो मिकदार थी, जो फर्क तोल था, तोल का फर्क जो था, ये तवानाई में तब्दील हो गया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एटम के टूटने से तवानाई खारिज हुई है। हत्ता कि आप देख लें कि एटम बम में जो तवानाई खारिज होती है, जो निकलती है, वो इसी उसूल के तहत निकलती है। एक टूट से हासिल शुदा तवानाई, पीछे हम इस मसावत को पढ़ चुके हैं। यूरेनियम 235, इस पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी होती है और ये सीजियम और रुबिडियम में तब्दील होता है और 2 न्यूट्रॉन औसतन खारिज होते हैं। इस अमल को पहले हम पढ़ चुके हैं। इसमें आप देखें कि जो फर्क तोल है टूटने से पहले और टूटने के बाद का, m बराबर है 2.65 × 10 की ताकत -28 किलोग्राम, ये निकाल चुके हैं हम। C की कीमत हम जानते हैं 3 × 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकंड। E हम मालूम करना चाहते हैं। इस एक टूट के नतीजे में जो तवानाई मिलती है उसकी कीमत हम मालूम करना चाहते हैं। तो फार्मूला है हमारे पास E बराबर mc²। तो m की जगह पे, E बराबर m की जगह पे 2.65 × 10 की ताकत -28 हमने लिखा किलोग्राम और c² है, c का मुरब्बा है, तो c की कीमत 3 × 10 की ताकत 8, इसका मुरब्बा है। आपस में इनको ज़रब दी, ज़रब देने के बाद E की कीमत आई 2.385 × 10 की ताकत -11 जूल। एक यूरेनियम का एटम 235 मरकज़ा टूटने से सीजियम और रुबिडियम बना, 2 न्यूट्रॉन खारिज हुए और इतनी तवानाई साथ खारिज हुई एक टूट के नतीजे में। टूट से हासिल शुदा तवानाई, इस जौहरी टूट में तवानाई की ज्यादा मिकदार खारिज नहीं हुई। पीछे जो हमने निकाली है तवानाई की मिकदार, वजह क्योंकि सिर्फ एक मरकजे के टूटने से ये तवानाई खारिज हुई है। एक एटम, एक मरकजा टूटा है जिससे ये तवानाई हमें मिली है। मगर जब बड़ी तादाद में एटमों के मरकजे टूटते हैं तो बड़ी मिकदार में तवानाई खारिज होती है। अरबों खरबों जब एटम बैक वक्त टूटेंगे तो उससे तवानाई जो खारिज होगी वो इतनी ज्यादा होगी कि हम उसका अंदाजा लगाकर हैरान हो जाएंगे।
अब आइए 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 में एटमों की तादाद निकालते हैं। एक एटम से कितनी तवानाई खारिज होती है ये तो हमने पीछे निकाल कर देख लिया, लेकिन 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 हो तो उसमें से कितनी तवानाई खारिज होगी, वो फटेंगे, वो टूटेंगे उसके मरकजे। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम में कुल एटमों की तादाद मालूम कर लें। आइए देखते हैं कि यूरेनियम 235 के एक एटम का तोल तो हुआ 3.9014 × 10 की ताकत -25 एक एटम का तोल, ये हम पीछे भी देख चुके हैं। तो 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 के कुल एटमों की तादाद हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। देखिएगा जरा इकाई वाला कायदा, 3.9014 × 10 की ताकत -25 किलोग्राम हुए बराबर एक एटम के, यानी इतने किलोग्राम से कितने किलोग्राम हो तो एक एटम, ये एक एटम का तोल है ना, तो 3.9014 × 10 की ताकत -25 किलोग्राम, ये बराबर हो गया एक एटम के। और 1 किलोग्राम कितने एटमों के बराबर हो गया? 1 किलोग्राम बराबर 1/3.9014 × 10 की ताकत -25। तकसीम कर दिया, नीचे तकसीम करके जवाब लिखा हुआ है। 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 में एटमों की तादाद आगे है 1/3.9014 × 10 की ताकत -25। तो 1 किलोग्राम यूरेनियम में एटमों की तादाद हल किया, तकसीम किया तो आ गई 2.56 × 10 की ताकत 24 एटम। अंदाजा कर लें 10 की ताकत 24 एटम, इतने हैं 1 किलोग्राम यूरेनियम में एटमों की तादाद। आगे चलते हैं। अब आइए देखते हैं कि 1 किलोग्राम यूरेनियम कितनी तवानाई देती है। यूरेनियम का एक एटम टूटने से तो 2.385 × 10 की ताकत -11 जूल तवानाई खारिज होती है, पीछे हम निकाल चुके हैं। एक एटम टूटने से, एक टूट की ये तवानाई है, तो 1 किलोग्राम यूरेनियम से कितनी तवानाई खारिज होगी? हम उन 1 किलोग्राम के जो एटम हमने बनाए हैं उनको ज़रब दे देते हैं। एक एटम टूटने से जो तवानाई हमें मिलती है उससे कुल एटमों को जो 1 किलोग्राम के बने हैं उनको हम ज़रब दे देते हैं। कुल तवानाई बराबर है एक एटम की तवानाई ज़रब कुल एटमों की तादाद। इससे ज़रब दे दी हमने, कुल तवानाई बराबर एक एटम की तवानाई थी 2.385 × 10 की ताकत -11 जूल, और इसको कुल एटमों से ज़रब दे दी, एटमों की तादाद है 2.56 × 10 की ताकत 24 जूल। तो कुल तवानाई आ गई 6.1056 × 10 की ताकत 13 जूल। 1 किलोग्राम यूरेनियम के एटम टूटने से तवानाई मिलती है 6.1056 × 10 की ताकत 13 जूल। ये बहुत ज्यादा तवानाई है अगर आप इसका तखमीना लगाकर देखें। आगे चलते हैं। हम इस तवानाई को वाट में भी तब्दील कर सकते हैं, जो आम ताकत की इकाई है। वाट बराबर जूल फी सेकेंड। पहले तो हमने पढ़ा कि एटम टूटता है तो कितनी तवानाई खारिज होती है। अब एटम आपस में जुड़ते हैं, मरकज़े आपस में जुड़कर बड़ा मरकज़ा बनाते हैं तो कितनी तवानाई खारिज होती है। इस अमल को जौहरी इंज़िमाम कहते हैं, जम होने का अमल। जौहरी इतलाफ भी कहते हैं, जुड़ने का अमल। व अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम। और जौहरी गदाख्त भी कहते हैं, पिघल कर जुड़ जाना, यकजान हो जाना। और जौहरी इदगाम भी कहते हैं, मदगम होने का अमल। जौहरी पैवस्तगी भी कहते हैं, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। और जौहरी जुड़ाव भी हम कह सकते हैं। आइए जौहरी इंज़िमाम न्यूक्लियर फ्यूजन को पढ़ते हैं। जौहरी इंज़िमाम में दो हल्के मरकज़े जम होकर एक भारी मरकज़ा बनाते हैं। इस मसावात में देखें, ये ड्यूट्रियम है H12, इसका मतलब इसमें एक प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन है। और ऊपर चूंकि प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन है 2 लिखा हुआ है तो ये ड्यूट्रियम है। और आगे है ट्रीटियम, एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। ये हाइड्रोजन के हमजा हैं, आइसोटोप्स। तो ये आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा मरकज़ा, ये जो 2 छोटे मरकज़े हैं एक बड़ा मरकज़ा मिलकर बनाते हैं हीलियम He24। और एक न्यूट्रॉन यहाँ से खारिज होता है। न्यूट्रॉन खारिज होने का अमल हम समझ सकते हैं। जो बाएं तरफ है, जो जम होने से पहले
ये ऊपर वाले जो ए हैं तोल नंबर, उनको जमा करें वो 5 आता है, लेकिन हीलियम में 4 है तो आगे न्यूट्रॉन के पास 1 आ गया। नीचे चूंकि कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में प्रोटॉनों की तादाद एक जैसी है, 1 1, तो आगे न्यूट्रॉन के पास, तो ये न्यूट्रॉन की अलामत है N01, और इसके साथ बहुत सारी तवानाई खारिज होती है। हमने यही अंदाज़ा तखमीना लगाना है कि जौहरी टूट के बिलमुकाबिल जौहरी इंजमाम में कितनी तवानाई खारिज होती है। आइए जौहरी इंजमाम का मुशाहिदा करते हैं। एक ड्यूट्रियम और ट्रीटियम एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और ये जम होने लगे हैं। जम होकर ये एक न्यूट्रॉन खारिज करेंगे जैसा कि पिछली मसावत से हमने देखा, और बहुत सारी तवानाई खर्च करेंगे। ये हीलियम बना, जम होने के नतीजे में एक न्यूट्रॉन और साथ तवानाई खारिज हुई। देखते हैं कितनी तवानाई खारिज होती है। अमले इंजमाम से हासिल शुदा तवानाई, एक अमले इंजमाम से, और आप मसावत में देखें जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, H12 ये ड्यूट्रियम है, ट्रीटियम के साथ मिला, ये हीलियम बना, एक न्यूट्रॉन खारिज हुआ और साथ तवानाई खारिज हुई। पिछले जो हमने जौहरी टूट में हमने तवानाई का अंदाज़ा लगाया था, उससे पहले हमने इन सब के तोल मालूम किए थे। तो सबसे पहले देखिए उनसर है और दाएं तरफ एटमी तोल है उसका किलोग्राम में। उनसर है हमारे पास, हमजा है हाइड्रोजन का H12, ड्यूट्रियम इसका तोल 3.345 ज़रब 10 की ताकत -27 किलोग्राम है, और ट्रीटियम H13 का है 5.008 ज़रब 10 की ताकत -27 किलोग्राम, और हीलियम He24 इसका है 6.647 ज़रब 10 की ताकत -27 किलोग्राम, और एक न्यूट्रॉन का तोल है 1.6750 ज़रब 10 की ताकत -27 किलोग्राम। इस तोल की मदद से हम एक इंजमाम से निकलने वाली तवानाई का अंदाज़ा लगाएंगे। अमले इंजमाम से हासिल शुदा तवानाई कैसे निकालेंगे? मंदरजा झैल की कीमतें हमने मालूम करनी है। नंबर 1, फ़र्क़ तोल, इंजमाम से पहले का और इंजमाम के बाद का तोल मालूम करना है, और फिर फ़र्क मालूम करना है। उसके बाद एक इंजमाम की तवानाई मालूम करनी है, जैसे हमने एक टूट की तवानाई मालूम की थी। अमले इंजमाम से हासिल शुदा तवानाई, उसी तरह ये मसावात है, पहले हम पढ़ चुके हैं। इंजमाम से पहले का तोल और इंजमाम के बाद का तोल मालूम करना है। इंजमाम से पहले का तोल ये ड्यूट्रियम का है 3.345 ज़रब 10 की ताकत -27 किलोग्राम, जमा ट्रीटियम का जो बाएं तरफ है H13 इसका 5.008 ज़रब 10 की ताकत -27 किलोग्राम, और ये बराबर हो गया 8.353 ज़रब 10 की ताकत -27 किलोग्राम। ये इंजमाम से पहले का तोल है। और इंजमाम के बाद का तोल देखिएगा दाएं तरफ, ये जो हीलियम है 24 ये 6.647 ज़रब 10 की ताकत -27 किलोग्राम हीलियम का तोल है दाएं तरफ मसावात के, और जमा एक न्यूट्रॉन का तोल 1.675 ज़रब 10 की ताकत -27 है। ये बराबर हुआ 8.322 ज़रब 10 की ताकत -27 किलोग्राम। ये इंजमाम से पहले का तोल और इंजमाम के बाद का तोल। अब हम फ़र्क निकाल सकते हैं। तोल का फ़र्क, इंजमाम से पहले का तोल, इसमें से मनफी कर देना है इंजमाम के बाद का तोल। m बराबर आ गया फ़र्क के तोल, तो ये m बराबर आ गया, इंजमाम से पहले का तोल है 8.353 ज़रब 10 की ताकत -27 किलोग्राम, और इंजमाम के बाद का तोल है 8.322 ज़रब 10 की ताकत -27 किलोग्राम। तो ये फ़र्क आ गया m बराबर 3.1 ज़रब 10 की ताकत -29 किलोग्राम। ये फ़र्क तोल है इंजमाम से पहले का और ज़र्रात के इंजमाम के बाद का। एक इंजमाम से हम तवानाई मालूम कर लेते हैं, एक इंजमाम से कितनी तवानाई हासिल होती है, और 1 किलोग्राम इंजमाम हो ज़र्रात का तो कितनी तवानाई खारिज होगी, ये भी हम आसानी से अब निकाल सकते हैं पिछले की तरह से। और हम यहाँ से ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो इंजमाम की तवानाई है वो कितनी ज़्यादा है इंशिकाक या टूट की तवानाई से। तो आप देखिए मसावात वही है
یہ ڈیوٹریم اور ٹریٹیم آپس میں ملتے ہیں، ہیلیم بنتا ہے، ایک نیوٹران خارج ہوتا ہے اور توانائی خارج ہوتی ہے۔ ایم کی قیمت ہے ہمارے پاس جو فرقے تول آیا ہے انضمام سے پہلے اور انضمام کے بعد کا، ایم برابر 3.1 ضرب 10 کی طاقت -29 کلو گرام۔ سی کی قیمت 3 ضرب 10 کی طاقت 8 میٹر فی سیکنڈ۔ ای ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، ای برابر ایم سی اسکوائر، تو ای برابر ہو گیا 3.1 ضرب 10 کی طاقت -29 ضرب سی اسکوائر، سی کا مربع 3 ضرب 10 کی طاقت 8 کا مربع، آپس میں ان کو ضرب دی تو یہ توانائی آئی 2.79 ضرب 10 کی طاقت -12 جول۔ یہ توانائی جو ٹوٹ کی توانائی سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ایک جو انضمام کے نتیجے میں یہ توانائی ملی ہے، ایک انضمام کے نتیجے میں ملنے والی توانائی سے ہم 1 کلو گرام کے انضمام سے جو توانائی ملتی ہے اس کا تخمینہ لگا سکتے ہیں۔